ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਔਰ ਮਨੋਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੀਤਾ ਰਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਰੇਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਿਹਾਗ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰ ਰੇਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਿਹਾਗ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਮਨੋਜ ਔਰ ਸੰਦੀਪ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੇ ਉਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੈਰਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਸਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰਾ ਮਿਲੇ, ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਹਾਗ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ, ਐਕਸ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਗੀਤਾ ਰਾਠੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰੇਰਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਰੜਈ ਦੇ। ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਾਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ है। मेरा ये सवाल था आपसे कि जो प्लानिंग है वो प्लानिंग आखिरकार एक अच्छे मकान के लिए, एक अच्छी मार्केट के लिए, एक अच्छे माहौल के लिए कैसी होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और सबसे पहले मैं जी चैनल, जी न्यूज़ और पूरी जी फैमिली को हमें बुलाने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके साथ मैं जो आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, जो मेरा करीब 42 साल से टाउन प्लानिंग रेरा में हरियाणा के केस में अनुभव रहा है, और हमारी कहाँ कामयाबी रही, कहाँ हमारी नाकामयाबी रही, उन सारी बातों को हमने ध्यान में लेके, और मैं जो हमारा अमर्जिंग ट्राई सिटी का किस टाइप की और क्या चीज़ें होनी चाहिए उन पे मैं बात करना चाहूँगा। कि आपने बहुत अच्छा मुझे पहला ही जो क्वेश्चन किया है, कोई भी आपका सिटी है, टाउन है, या कोई ह्यूमन सेटलमेंट है, आपने देखा है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स वो कुछ सालों के लिए नहीं बनाई जाती। ये हो सकता है सैकड़ों और हज़ारों सालों की आपकी ह्यूमन सेटलमेंट की लाइफ होती है। और उसमें जहाँ टाउन प्लानर का पेंसिल चलती है वो एक शहर की तकदीर लिखता है। और ये तकदीर लिखने के लिए हमने बेसिकली 4-5 चीज़ों का बेसिक ध्यान देना होता है। सबसे पहले है आपकी टोपोग्राफी, कि आपने जहाँ आप शहर बसा रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट आएगी, ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी टोपोग्राफी ऐसी जगह पर है कि जहाँ हर साल कुछ न कुछ वहाँ आपको दिक्कतें आती रहें। कहीं बारिश का फ्लड आ गया है, कहीं अर्थक्वेक आ गया है, कहीं आपका वोल्केनोज फट गए हैं। तो आपने देखा होगा हमारे बुजुर्ग जहाँ पर भी ह्यूमन सेटलमेंट शुरू करते थे, उनका पहले फोकस होता था कि गांव का, शहर का उस
दरे पे बनाओ जहाँ पर आपकी इन चीज़ों से हमें बचा जा सके। दूसरा है आपका बेसिक अवेलेबिलिटी ऑफ पानी। क्या हमारे पास में, आज मैं चंडीगढ़ का ही एक एग्जांपल लेके चलूँ, पानी की अवेलेबिलिटी हमारे पास में इतनी है कि जो हम रीजनल सेटिंग में हमारे 10 टाउन्स और हैं। आप केवल चंडीगढ़ को ट्राई सिटी के रूप में ना देखें, इसको हम ये माने कि ये आपका एक ग्रुप ऑफ 10 to 11 टाउन्स है। आप चंडीगढ़ मदर सिटी है हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसके ट्विन सिस्टर्स या ब्रदर्स आप कहेंगे कि आपका माहौली और पंचकुला है। फिर व्हाट अबाउट आवर अदर्स जो टाउन्स हैं हमारे 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में है, जैसे हमारा कुराली है, खरड़ है, बनूड़ है, जीरकपुर है, डेरा बसी है, पंचकुला में बरवाला है, पिंजौर है, कालका है। इन सब की जब तक हम हमारी रीजनल सेटिंग में वो ध्यान में नहीं रखेंगे, तब तक हम ट्राई सिटी की सोच भी नहीं सकते। 5 लाख पॉपुलेशन के लिए आपने चंडीगढ़ को बनाया। जी जी जी। आज आपकी जो हिंटरलैंड और इन 11 टाउन्स की पॉपुलेशन है वो करीब करीब 50 लाख को क्रॉस कर गई है। 50 लाख की जो आपने आबादी को फीड करना है, फिर रीजनल सेंटर बन गया है आपका ट्राई सिटी। उस सूरत में क्या हमारी रिक्वायर्ड रीजनल सेटिंग में कनेक्टिविटी, वाटर, ड्रेनेज सिस्टम, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ये हमने प्रोवाइड किया है? इसमें हमारा पब्लिक का रोल भी है और गवर्नमेंट का भी है। गमाडा ने बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट। बिल्कुल, आपने बात सही कही है, मैं आपको रुकना चाहूँगा, मगर मैं जानना चाहूँगा कड़ई के चेयरमैन हैं जो कि क्या जो बोले जा रहा है कि प्लानिंग के लिए होना चाहिए, ਮਾਝਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੜਈ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। See, सबसे पहले तो I want to compliment Z for taking this initiative and promoting Tri-City because it deserves, the Tri-City deserves. So sometimes we say in routine that soon Chandigarh will be poor cousin of Mohali. The reason being the private players, the way they work, we work around the clock and we want same kind of support from our governing authorities. And we are really happy that we are contributing something for the development of the great country like India. So this credit goes to Z. Kadai is a national body. We are largest stakeholder of largest player and taking care of all the stakeholders, including our realty players, the manufacturers, the end users, and of course, the ancillary industries also. We support around 269 ancillary industries. So I am representing as the president. You have made me more senior by saying that I am chairman. So when we are sitting vis-a-vis the two my senior panelists from RERA, ma'am, and from the country and town planning, the thing starts from the planning. And RERA, when we talk of RERA, RERA plays a major role because it's a governing body. We are pushing that RERA should, as it has come, it should be given lead in governing the and supporting the realty sector and taking care of the realty sector instead of the other law enforcing bodies, because it is a specialized field and the sector which is contributing great to the GDP of the country. We are contributing around 8.5% to the GDP of the country. And when we talk of Punjab, it is 18%. And if we take the sector as a whole, it will be around 47 to 50% contribution. And if such sector is given a kind of a little bit of treatment it deserves, and RERA is, when RERA is there, we are in safe hands because we are also heard in RERA. ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, true. The thing is, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ RERA
ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈਟ ਵੈਲਕਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਰੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਰ ਦ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਦਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਰੈਰਾ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਰਡੇਈ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ to all the departments. So that helps in making of the beautiful India. इस महत्वपूर्ण चर्चा के बीच जो है अगले सवाल का जवाब मैं डॉक्टर गीता राठी सिंह से लेना चाहूँगा। मैम, आपको इस वक्त करोड़ों जो दर्शक हैं वो सुनना चाहेंगे और यहाँ पर बैठे हुए तमाम हमारे मेहमान भी सुनना चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जो रियल एस्टेट में जिस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है 62,000 करोड़ रुपए के जो ये इन्वेस्टमेंट्स पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रेरा पर जो है वो एक बड़ी जिम्मेवारी रहती है क्योंकि कंज्यूमर और इन्वेस्टर के बीच जो है रेरा किस तरीके से दोनों को ही रेगुलेट कर रहा है और क्या बातें कंज्यूमर को समझनी चाहिए और क्या बातें इन्वेस्टर को समझनी चाहिए। Thank you first of all Zee Punjab, Haryana, Himachal for creating this platform where all the stakeholders can come and discuss the issues pertaining to the real estate sector. I think we all know the real estate sector, it has almost become the backbone for the Indian economy. We are one of the largest contributors to the development of the country. So now it has to be seen that it is a very, very major and important role that this sector is playing. So all of you who are present here, you're contributing in your own ways to the development of this country. So you all out here have come with this huge responsibility that how and where you're going to take this country forward to. Whatever the infrastructure developments are there in the real estate sector, it creates a brand for the country. जब हम अब दुबई की बात करते हैं, दुबई में वी टॉक अबाउट द हाई राइज, उन्होंने अपने लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, एक कंट्री के लिए ब्रांड क्रिएट किया. Similarly, in India also, the real estate sector, all the promoters, the developers, you're contributing to that development, you're contributing to the development of this country. Now it has to be seen that, RERA, why was RERA required? The real estate sector was there before the RERA came into force. Then what was the need to have RERA? So, primarily after 2005, there was a boom in the real estate sector, huge investments coming and flowing into the country. However, there were no standard business practices being followed. हर किसी का अपना एक तरीका था काम करने का. Everybody was working in their own ways. हर state के अपने land laws अलग थे. So there was no organized way to carry out the business. So after some time it was felt, कि कुछ projects distress हुए because there were no standard practices, there were no standard guidelines. So RERA came into force. So जब RERA आया, सबसे पहला apprehension जो कहीं ना कहीं सेक्टर के दिमाग में था कि एक और रेगुलेटर, एक और लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आके बिठा दिया गया, which was not the case. Primarily जब भी एक नया रेगुलेशन आता है, कानून आता है, उसको लेके एक अडेप्टेबिलिटी को लेके इश्यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हमें बोला गया था पहली बार कि सीट बेल्ट लगानी है गाड़ी में, बड़ी परेशानी होती थी ना सभी को. बट ग्रेजुअली वी ऑल लर्न कि ये सीट बेल्ट हमारी ही प्रोटेक्शन के लिए है. एंड नाउ वी ऑल आर यूज टू इट. अब हम सब गाड़ी में बैठते हैं, ऑटोमेटिकली वो सीट बेल्ट लग जाती है. सेम इज द केस विद रेरा. रेरा इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर. इट इज देयर to help the sector develop. However, it is also there to regulate the sector so that whatever development is there, it is within the certain boundaries. हर कोई एक standard business practices को follow करें. जैसे कि ये पूछा गया है कि एक रेरा एक क्या लिंक क्रिएट करता है कंज्यूमर और एक बिल्डर के बीच में. जो सबसे बड़ी और एक अच्छी चीज़ रेरा आने के बाद हुई कि रेरा एक्ट इज़ द ओनली एक्ट दैट इज़ बेस्ड ऑन इक्विटी, जो ये कहता है शुरू से ही कि प्रमोटर और बिल्डर और जो कंज्यूमर है, उनके जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं
और सबका पूरा करने का इक्वल ही उनके ऊपर दायित्व है। अगर बिल्डर की, प्रमोटर की कोई ऑब्लिगेशन है वो भी वो पूरे करेंगे, और कुछ जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो स्पेशली सेक्शन 19 में प्रोवाइडेड है वो अलॉटी की भी हैं, वो भी अपनी पूरी करेंगे। दिस इज़ द ओनली एक्ट दैट इज़ बेस्ड अपॉन इक्विटी। और जहाँ पे इक्विटी आती है वहाँ पे एवरीबडी नोज कि हाँ हमारे अपने ये दायित्व हैं और हमें जो पूरे करने हैं। हमसे पहले जो पैनल डिस्कशन था उसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था कि रेरा की तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा है। सो आई थिंक हरियाणा रेरा के बिहाफ आई वुड लाइक टू से कि सिंगल विंडो होनी चाहिए, एक्सपीडाइट होनी चाहिए। सिंस आई एम हेयर ऑन बिहाफ ऑफ हरियाणा रेरा पंचकुला, आई वुड, आप सभी यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स भी हैं सेक्टर में, रेरा पंचकुला is one of the RERAs which is granting the registration within 30 days. हम 30 दिन में एप्लीकेशन के आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं, या फिर आपको कहते हैं कि जी ये आपकी कमी पेशियां हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं बनता, आपका जब सारे कागज होंगे आप अपना आ जाएगा। बट वी आर द ओनली वन इन द कंट्री विच एक्चुअली इश्यूज आरसी विद इन 30 डेज। हम 31वां दिन नहीं होने देते। सो एज वेल एज compliances are concerned, to simplify those compliances, एक और जो बैरियर, मेंटल बैरियर आता है जब रजिस्ट्रेशन लेने जाता है कि भाई बहुत पेपर वर्क होगा, रेरा पंचकुला हैज सिंप्लीफाइड दैट पेपर वर्क। हमने अपनी कुछ SOPs, गाइडलाइंस तैयार करी हैं, इट इज़ इन पब्लिक परव्यू, हर किसी को पता है जी ये चीज़ें करनी है, यू जस्ट हैव टू टिक दोज थिंग। आप आएंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, 30 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। दिस इज़ हाउ वी आर ईजिंग आउट the business practices, कि आपके लिए there we are providing ease to carry out businesses, so we are facilitating the development in that form. जहाँ तक कंज्यूमर आता है, कंज्यूमर की भी जो कंप्लेंट्स हैं we try to expedite them, कि जितनी जल्दी उनका समाधान निकाला जाए। and yes, after this last 3-4 years we have seen there is a very positive outlook। अब जो सेक्टर में भी ये है कि they also want to deliver on time, और आपको जो बिल्डर्स हैं वो भी अब, क्योंकि रेरा आ गया है, रेरा आया है तो रेरा है तो भरोसा है, एक कंज्यूमर में रेरा आने की वजह से वो कॉन्फिडेंस आया है। सो आई थिंक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए, कंज्यूमर के मन में कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए, आई थिंक रेरा हैज़ प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। बिल्कुल, आपने काफ़ी डिटेल जानकारी जो है वो यहाँ बैठे तमाम बड़े इन्वेस्टर्स को भी दी है, साथ साथ हमारे जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के करोड़ों दर्शकों को भी दी है। सिहाग साहब, आपसे अगले सवाल का जवाब लेना चाहूँगा। आप टाउन प्लानर की भूमिका निभा चुके हैं। जिस तरीके से चंडीगढ़ में लगातार डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारे नए शहर बनते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब अगली नज़र जो है वो लोगों की हरियाणा की तरफ है, पंचकुला की तरफ है। आप किस तरीके से देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से प्लान्ड और स्मार्ट शहर जो है वो बसाना बहुत ज़रूरी है? चाहे पंचकुला की बात करें, चाहे मोहाली की बात करें, या चंडीगढ़ का हमने सराउंडिंग की बात की है पूरी, कि जो सिटीज़ हैं उसको सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम और भी है, वाटर लॉगिंग जो है उसका कोई हल निकलेगा नहीं निकलेगा, या ये जो प्लानिंग हुई है वो ठीक नहीं हुई? ये जो आपने मुद्दे उठाए हैं ये टाउन प्लानिंग के बेसिक मुद्दे हैं, और मैं इस पे ये बतलाना चाहूँगा कि पंचकुला और चंडीगढ़ की टोपोग्राफी इस टाइप की है कि जहाँ आपको ड्रेनेज वगैरह की दिक्कत नहीं आती। फिर जो हमारा पंजाब का पेरीफेरी का पार्ट है, वो चाहे माहौली का है या आपका खरड़ का है, बनूड़ का है, ये जीरकपुर का है, ये टोपोग्राफी ऑलमोस्ट फ्लैट, और फ्लैट है तो ऊपर से आपका जितना रनवे वाटर पानी का रहता है चंडीगढ़ का, पंचकुला का, वो सारे का सारा आपकी इस एरिया को फ्लडिंग करता है। इसमें हमारी दो चीज़ों पे मैं चाहूँगा, एक है हमारी स्टेट्स एजेंसीज़ का काम, जहाँ पर आपका ड्रेनेज सिस्टम जितना आपका सिटी लेवल पे है वो डेवलप करना। पंचकुला में काफ़ी कुछ हुआ है, गमाडा ने एफर्ट्स किए हैं, काफ़ी कामयाब हुआ है, फिर भी अभी और गुंजाइश है। दूसरा, मैं आज आपके बहुत सारे डेवलपर्स को सुना है और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
उनके लिए मेरी दो गुजारिश है, जो आपकी इन्वायरमेंट और वाटर प्रॉब्लम दोनों को ही वो डेल्ट करेगी। इसमें पहली चीज़ है कि आपका हमारा रेरा साइड से भी और टाउन प्लानिंग हरियाणा की साइड से एक लाइसेंस में कंडीशन रहती है, यू हैव टू मेक प्रोविज़न ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग विद इन योर प्रेमिसेस। मुझे नहीं आइडिया है कि हमारा जो इस पार्ट में है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमारे प्राइवेट डेवलपर्स ने किस लेवल का और कितना एफिशिएंट सिस्टम बनाया है। जैसे ओमैक्स ही है हमारी, वो 1100 एकड़ में आ रहा है। कहीं हमारा जीरकपुर का एक छोटा आपका कोई साइट है जिसपे 5 एकड़ में या 10 एकड़ में आपका ग्रुप हाउसिंग आ रहा है। तो वो हमने ध्यान ये देना है कि आपका जो आज इन्वायरमेंट की हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसमें आपका फ्लडेबिलिटी का भी इश्यू है, उसमें आपका दूसरा जो हमारा है कि क्लीनिनेस वो भी इश्यू है, तीसरा हमारा ग्रीनरी और डेवलप्ड ओपन स्पेस, ये 3 इश्यूज ऐसे हैं। मैं सियाक साहब 1 मिनट आपको रोकना चाह रहा हूँ। हमारे बीच में गमाडा के सीए मोनीश कुमार जी पहुंच गए हैं। मैं सभी को बोलूँगा कि वो तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मनीष जी, पूरा जो मोहाली शहर है इनके ये देख रेख करते हैं और बहुत बड़ा शहर बना दिया है इन्होंने जी, और बहुत से प्रोजेक्ट हैं इनके पास आगे भी जी। सियाक साहब प्लीज़। मैं मेरी तरफ से और हरियाणा साइड से मैं इनका स्वागत करना चाहूँगा, और हमारा ये फॉर्चून है कि वो जब हम यहाँ एड्रेस कर रहे हैं तो वो उनकी प्रेजेंस है। कोई इसमें शक नहीं है कि आज के दिन जितना गमाडा का पुडा का काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। एक स्टेज थी जहाँ पर पंचकुला को ये कहते थे कि पंचकुला काफ़ी आगे है। आज माहौली में आपका जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, चाहे वो हेल्थ का है, एजुकेशन का है या आपका स्पोर्ट्स रिलेटिंग है, काबिल तारीफ़ है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इनकी लीडरशिप में आगे जो प्लान डेवलपमेंट का हमारा एक कंसेप्ट है कि ट्राई सिटी को, ये ट्राई सिटी का नहीं है हमारा, ये हमारा पूरे के पूरे रीजन का हमने एक लीड लेके जाना है। जैसे हम आज प्री इंडिपेंडेंस के लिए लाहौर को एग्जाम्पल देते हैं। लाहौर की जो प्लानिंग है, और वो ये जो पंजाबी में बोलते हैं कि जिन्होंने लाहौर नहीं देखा वो जम्या ही नहीं। सियाक साहब, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हैं आपने इस वक्त इस चर्चा के बीच रखी हैं। समय का अभाव है, मैं आप तीनों ही सम्माननीय गेस्ट का जो है तहे दिल से थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद जी आई विल लव टू ऐड। सर ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट छेड़िया सी सस्टेनेबल दा। सस्टेनेबल वी आर टू एक्सेप्ट इज इट एज ए वे ऑफ लाइफ, एंड व्हेन वी टच दैट टॉपिक के रेन वाटर हार्वेस्टिंग पंजाब दे विच, इवन आई थिंक इन हरियाणा इट इज़ मैंडेटरी, एंड ऑल डेवलपर्स हु आर सिटिंग हेयर, द न्यूएस्ट मास्टर प्लान इज़ न्यू चंडीगढ़, एंड ओमैक्स ने पहला ही ये अपना आंकड़े दिते कि वी आर डेवलपिंग अराउंड 1100 acres, and I think they are having around 25 rainwater harvesting. In my township, I am having 2. Same is the case with my New Chandigarh president, Mr. Bunny is there. So we are committed for sustainable development, and rainwater harvesting is mandatory. Our honorable CA Gamada is there. It is mandatory for houses also. In all 1 canal houses in Mohali, they have made it mandatory to have rainwater harvesting, and we are contributing, and we are happy that we are recirculating the water. This is our commitment. बिल्कुल, आप तीनों ही सम्माननीय गेस्ट का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा।